Welcome, students. Today we start the new chapter, that is the enhancement of food production. This is the very important topic. Why we take the topic? Because due to the rapid increase in human population of the world, increase of food production a major necessities. ठीक है, यू नो अबाउट देम, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो रैपिडली ग्रोथ कर रही है. ठीक है, और रैपिडली ग्रोथ करने के कारण सभी पॉपुलेशन जो हैं सबको दैट इज़ रिक्वायर्ड द फूड. फूड की सबके रिक्वायर्ड है. एंड यू नो अबाउट देम, जो एग्रीकल्चर फील्ड्स है वो आपका लिमिटेड है. तो हाउ कैन दे आर फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, कैसे हम उसको फुलफिल कर सकते हैं. तो उसके लिए क्या है, वी यूज़ द डिफरेंट टेक्निक फॉर इंक्रीज द प्रोडक्शन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द फूड. ओके, इसलिए इस टॉपिक को लिए हैं. इनसाइड दिस टॉपिक वी डिस्कस अबाउट द four major topic. One is the animal husbandry, second plant breeding, third single cell proteins, and fourth one is the tissue culture. Okay, इसको इसके अंतर्गत डिस्क्राइब किया जाएगा. क्लियर? ओके, सो स्टार्ट द टॉपिक फर्स्ट, दैट इज द एनिमल हस्बेंड्री. What is the means about the animal husbandry? The animal husbandry means, the word husbandry means the management of domestic affair. The term used in the connection with animal husbandry includes proper feeding, breeding, health care and housing. So what is the animal husbandry? The animal husbandry is a science and an art of management, including feeding, breeding, housing, health care of common domestic animals for getting maximum benefits. Okay, so what is the animal husbandry? That is clear. Listen again. Animal husbandry is a science and an art of the management. ठीक है, मैनेज करने का. इंक्लूडिंग, जिसमें इसमें इंक्लूड किया जाता है फीडिंग, उसके फीडिंग का, ब्रीडिंग, हाउसिंग, हेल्थ केयर ऑफ द कॉमन डोमेस्टिक एनिमल्स फॉर गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट्स. मैक्सिमम बेनिफिट के लिए उसकी देखभाल करना. Okay, what is the property which include inside the animal husbandry? First one is the breeding. Every know about the what is the breeding? Breeding is a process in which, that is the crossing between two different species for the increase the production and we say that quantity and quality of the food materials. Second thing, raising livestock. ठीक, लाइव स्टॉक को रेज करना. थर्ड वन, केयर ऑफ लाइफ स्टॉक, जो लाइफ एनिमल्स हैं, ठीक, उसका देखभाल करना, केयर करना. फोर्थ वन, इंक्लूड पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज. इन एनिमल हस्बेंड्री we discuss about the animal just like a milk producing animals. Poultry farming, that is also used for the flesh as well as the eggs, and fisheries, that is used for the food. Okay, so we discuss about inside them in case of animal husbandry. That is clear. First topic we discuss inside the animal husbandry, that is the dairying.
What is the dairying? Management of animals for milk and its product for human consumption. ठीक है, मैनेज करना एनिमल, कौन से एनिमल्स को? मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स को, दैट इज यूज फॉर द ह्यूमन बींग्स. ठीक है, बिकॉज ह्यूमन बींग्स दैट इज यूज द मिल्क फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स. So how can they are managed? The milk producing animals means that is the dairy farm management. How can they are management? Yeah, how can they we are manage them? First thing, the process and system that increase yield and improve qualities of milk. ठीक है, inside the dairy farm management में इसमें प्रोसेस एंड सिस्टम दैट इंक्रीज, इसमें कुछ सिस्टम और प्रोसेस इंक्रीज किया जाता है जिसके कारण जो मिल्क प्रोडक्शन की क्वालिटी है एंड क्वांटिटी वो इंक्रीज करे. ओके, तो हाउ कैन दे आर इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मिल्क? फर्स्ट वन, सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड्स. अब मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल के लिए गुड क्वालिटी के जो नस्ल होती है, मीन्स काउ एंड बुफैलो को यूज़ करना. सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड मतलब अच्छे वैरायटी के स्पीसीज को यूज़ करना. सेकेंड, गुड केयर ऑफ कैटल्स, उनकी देखभाल करना, केयरिंग करना. कैटल शुड इट मेंटेन डिजीज़ फ्री, और इस तरह के एनिमल्स हो जो डिजीज़ फ्री हो, डिजीज़ रेजिस्टेंस हो. ओके, स्पेशल एम्फेसिस ऑफ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूडर, जो एनिमल को फूडर मतलब फूड उसको प्रोवाइड किया जाए उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी अच्छी हो, क्वालिटी उसकी अच्छी हो, दैट इज हेल्प फॉर द प्रोड्यूसिंग इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड क्वांटिटी, इससे उसकी मात्रा भी बढ़ जाएगी. इस तरह का फूड का यूज़ करना. स्ट्रिक्ट क्लीननेस एंड हाइजीन, जहाँ पे एनिमल रखे जाए पूर्ण रूप से क्लीन हो, हाइजीन हो. रेगुलर इंस्पेक्शन एंड प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग, रेगुलरली जो हाउसिंग है, प्लेस है जहाँ पे एनिमल को रखा जाता है उसका इंस्पेक्शन करना, और प्रॉपर रिकॉर्डिंग कीपिंग, और सभी एनिमल का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना चाहिए. रेगुलर विजिट्स बाय वेटनरी डॉक्टर, ठीक है, नियर अबाउट मंथली या वीकली वंस टाइम डॉक्टर, रेगुलर जो एनिमल डॉक्टर होते हैं, एनिमल डॉक्टर किसको बोलते हैं हम लोग? वेटनरी डॉक्टर्स जो होते हैं. ओके, उनको चेकअप कराना. दैट इज क्लियर. दिस इज द सम पॉइंट थ्रू देम वी आर इंक्रीज द डेयरी प्रोडक्शन, या दैट इज इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन. दैट इज क्लियर. ओके, you see there is two species that is given here. One is the cow, another is the buffalo. This is the most important species that is used for the milk production. Okay, मिल्क प्रोडक्शन के लिए इन्हीं दो स्पीसीज का मैक्सिमम यूज़ किया जाता है. यदि इंडियन काऊ की बात करें तो इसमें जो मैक्सिमम दैट इज यूज फॉर द मिल्क ब्रीड स्पीसीज है वह गिर स्पीसीज है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान. गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है गिर नस्ल की जो काऊ है. साहिवाल, दैट इज आल्सो ए गुड वैरायटी ऑफ ब्रीड ऑफ मिल्क एनिमल्स, दैट इज अकर इन डिस्ट्रीब्यूटेड द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. And Deoni, there is another milk breeding species that is present in the Andhra Pradesh. Okay, so this is the good variety of cow that is used for the milk production. Everyone know about the what is the scientific name of cow? Okay, I hope that all of you know about them. Next I have buffalo. बुफैलो जो अच्छी गुड क्वालिटी की ब्रीड है, दैट इज अकर इन
डिफरेंट रीजन ऑफ द इंडिया। जैसे मुर्रा, मुर्रा जो स्पीसीज है बुफेलो की, इस दैट इज रिलीज द मिल्क, देर इज वेरी लार्ज क्वांटिटी अबाउट 8 to 10 liters। दैट इज अगर इन केस ऑफ स्टेट पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। भदावरी, दैट इज अगर इन उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। सुरती, राजस्थान एंड गुजरात। सम अदर स्पीसीज दैट इज आल्सो यूज्ड। ओके, so this species that is used for the dairy, for management, for production of milk. Second, that is used for the egg as well as the flesh, poultry food. So what is the poultry? The word poultry is used for birds which can be raised under domestication for economic purposes. Okay, for the poultry for manage, how can we manage the poultries, means birds को कैसे मैनेज करते हैं? तो पोल्ट्री फॉर मैनेजमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। इसके अंदर कई कंपोनेंट्स आता है। पहला है सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड्स। ठीक, जो स्पीसीज को हम सेलेक्ट करें फॉर द एग एंड फ्लेश प्रोडक्शन के लिए, वह डिजीज फ्री हो, सुटेबल हो ब्रीड करने के लिए। सिलेक्शन ऑफ ब्रीड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। द ब्रीड शुड बी disease free and suitable to the environmental condition. The most common egg type of variety used for the commercial production throughout the world is single comb white leghorn। ठीक, एक प्रोडक्शन के लिए जो मैक्सिमम है वो सिंगल कॉम वाइट लेगहॉर्न है। एंड इट्स वेरियस स्ट्रेन, इसके अदर स्पीसीज जो है। The mid type of stock mainly originated from Plymouth Rock, Cornish and New Hampshire breed of the fall that is used for them। ठीक है, तो फिश एग एज वेल एज द फ्लैश प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट स्पीसीज यूज किए जाते हैं। सेकेंड है प्रॉपर एंड सेफ फॉर द कंडीशन। ठीक, जहाँ पर स्पीसीज या पोल्ट्री या बर्ड्स रखे जाते हैं वहाँ प्रॉपर कंडीशन होना चाहिए। प्रॉपर कंडीशन मतलब प्रॉपर लाइट होना चाहिए, नियर अबाउट 10 to 12 आवर्स लाइट होना चाहिए। सेफ फॉर कंडीशन, और उनको हर तरह से हर सीजन में सेफ होना चाहिए। विंटर सीजन में प्रोटेक्शन होना चाहिए, समर सीजन में कोल्ड कंडीशन उसको प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, proper food and water। Feeding constitutes the major management concern in egg and meat production। ठीक, जो फूड उनका अच्छी क्वालिटी को, तभी उनका जो एग है अच्छे क्वालिटी का रहेगा, फ्लैश का फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा। द ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल एंड विटामिन्स। ठीक, इनके जो फूड होना चाहिए दे कंटेन द प्रोटीन भी होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, फैट्स एंड मिनरल विद विटामिन होना चाहिए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज द सैनिटेशन एंड हाइजीन। जहाँ पर इनको रखा या पोल्ट्री फार्म जहाँ पर हो वहाँ प्रॉपरली सैनिटाइजेशन होना चाहिए। बिकॉज यू नो अबाउट देम, जो मैक्सिमम जो स्पीसीज होती है बर्ड्स की दैट इज अफेक्टेड थ्रू द वायरस। तो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वायरस सैनिटाइजेशन दैट इज वेरी नेसेसरी। एंड हाइजीन, और उसके चारों तरफ साफ सफाई हो, कूड़े करकट नहीं होना चाहिए। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट, केयर ऑफ चिक्स ड्यूरिंग द ब्रूडिंग। जो चिक्स हो उसके जो ऑफ स्प्रिंग हो उनकी अच्छी तरह से देखभाल करना चाहिए। ऑन द अराइवल ऑफ चिक्स स्वीट वाटर इज गिवन। द फीड इन द फॉर्म ऑफ मेज
दलिया शुड बी गिवन फर्स्ट 24 to 28 आवर। जो पहले जो चिक्स होते हैं उनको शुरुआत में मेज और की दलिया देना चाहिए। बट लेटर ऑन कंप्लीट चिक फीड शुड बी एडेड इन द फोडर। उसके बाद उसको चारे और देना चाहिए, दे कंटेन द विटामिन एंड मिनरल्स। ओके। हेल्थ केयर, उनकी हेल्थ की देखभाल करनी चाहिए। ठीक है। You see there is given one pictures in which you see the good variety of hens, and that is the production of egg, that is also a good varieties. Clear? Next process जो include किया गया inside them, that is the breed या breeding process. You know about them, what is the means about the breed या breedings, and what is the objective of animal breedings? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एनिमल ब्रीडिंग का? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनिमल ब्रीडिंग्स आर, जो मेन इसका ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट वन इम्प्रूव ग्रोथ रेट, जो ग्रोथ रेट है उसको इम्प्रूव करना। सेकेंड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मीट, एग, ओल। ठीक है, ये सभी प्रोडक्ट कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से। तो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, इसके थ्रू यदि एनिमल अच्छे क्वालिटी के होंगे तो मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, मीट का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, एग का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, एंड ओल का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। थर्ड वन सुपीरियर क्वालिटी ऑफ मिल्क, मीट, एग, ओल एट्सेट्रा, इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। फोर्थ वन इम्प्रूव रेजिस्टेंस टू द वेरियस डिजीज़, और इस तरह के ब्रीडिंग से हम जो स्पीसीज को हैं उसको अगेंस्ट द डिजीज़ रेजिस्टेंट कर सकते हैं। लास्ट वन इज़ द इंक्रीज प्रोडक्शन लाइफ, जो लाइफ है उनकी लाइफ स्पैन उसको इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना। दैट इज क्लियर। एंड इंक्रीज और एटलीस्ट एक्सेप्टेबल रिप्रोडक्शन रेट, और इनके रिप्रोडक्शन रेट को बढ़ा देना जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो। दैट इज क्लियर। तो एनिमल ब्रीडिंग का मेन एम क्या है, क्लियर हो गया एवरीवन? दैट इज क्लियर। वी होप दैट ऑल ऑफ यू गॉटिंग दिस पॉइंट। ओके, सो डिस्कस हियर व्हाट इज द ब्रीड। ब्रीड क्या है? अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स related by descent and similar in most characters like general appearance, features, size, configuration. ठीक है, a group of animals related by descent and similar in most character. ब्रीड जो स्पीसीज है वो बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए जो पेरेंट्स हैं उसके। ठीक है, लेकिन ब्रीडिंग प्रोसेस क्या है? दैट इज इंक्रीज द प्रोडक्शन। ओके, दैट इज इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ, जो अभी बताया गया, एग के लिए, फ्लैश के लिए, मिल्क प्रोडक्शन, ओल प्रोडक्शन के लिए। ओके, तो व्हाट इज द ब्रीड? क्लियर हो गया। जस्ट लाइक दैट इज गिवन वन स्पीसीज, दैट इज द मिल्क प्रोडक्शन वेरी हाई, दैट इज द साहिवाल। एक काऊ जो है साहिवाल है, जो उसकी वन टाइम की यदि मिल्क प्रोडक्शन की बात करें अबाउट 20 लीटर्स। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज द इनब्रीडिंग। व्हाट इज द इनब्रीडिंग? ब्रीडिंग इज बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। ठीक है, इनब्रीडिंग क्या है? द ब्रीडिंग इज बिटवीन, ये ब्रीडिंग किया जाता है बिटवीन किसके? एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड, सेम वैरायटी की जो स्पीसीज हो, फॉर 4 to 6 जनरेशन के, 4 to 6 जनरेशन के इनके बीच में क्रॉसिंग कराया जाता है, उससे जो ब्रीड ऑब्टेन होता है उसको हम इनब्रीडिंग कहते हैं। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ द इनब्रीडिंग? इनब्रीडिंग कराने से क्या एडवांटेजेस है? इंक्रीजेज
होमोजाइगोसिटीज, पहले जो उसकी होमोजाइगोसिटी है उसको हम इंक्रीज करते हैं। सेकेंड, हेल्प टू इवॉल्व प्योर लाइन, जो स्पीसीज जो प्योर वैरायटी की होगी, ठीक है। थर्ड वन, हेल्प्स टू इवॉल्व प्योर लाइन। हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन, इसके थ्रू हम सुपीरियर जीन को ऑब्टेन कर सकते हैं, जो अच्छी क्वालिटी को उसमें स्पीसीज है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट वन, हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजरेबल जीन, और इसमें जो लेस डिजरेबल जीन है, जिसकी क्वालिटी जीन की अच्छी नहीं है, उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या उसको आगे उसकी स्पीसीज को बढ़ने नहीं दे सकते हैं। So what is the inbreeding? That is clear. And what is the advantage of inbreeding? That is also discussed here. Next topic is related inbreeding depression. What it means about the inbreeding depression? Continue close inbreeding reduces fertility and even productivity. ठीक है, यदि कंटिन्यूअस एक ही स्पीसीज के बीच में, मतलब एक ही स्पीसीज, हाँ स्पीसीज की बात कर रहे हैं, इफ़ देयर इज़ द कंटिन्यू क्लोज ब्रीडिंग रिड्यूसेस, यदि एक ही स्पीसीज के बीच में कंटिन्यूअस ब्रीड कराया जाए, क्रॉसिंग कराया जाए, तो उसकी जो फर्टिलिटी है एंड प्रोडक्टिविटी दोनों रिड्यूस हो जाती है। इसी को हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स में देखे होंगे शादी ब्याह के अवसर पर क्या होता है कि गोत्र पूछे जाते हैं। ठीक है, लड़के का गोत्र क्या है, लड़की का क्या गोत्र है। यदि लड़के और लड़की का दोनों गोत्र एक मिलता है, ठीक है, तो उसमें शादी नहीं कराई जाती, कहा जाता है कि ये ब्रदर और सिस्टर है। ठीक, तो ये पहले से चला आ रहा है, मीन्स दैट इज इंक्रीज द प्रोडक्शन एज वेल एज द प्रोडक्टिविटी। ठीक, यदि एक ही स्पीसीज के बीच में क्रॉस करा रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी है, क्वालिटी है स्पीसीज की, वो डिक्रीज हो जाती है। उसी को हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? एनिमल्स कैन बी मैटेड विथ अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड्स। ठीक, उसी वैरायटी के यदि दूसरा स्पीसीज है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के, उसके साथ उसको ब्रीड कराना, उसके साथ क्रॉसिंग कराना, उसको हम कहते हैं दिस द रिव्यू ऑफ द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्लियर? ओके, दिस इज द टू स्पीसीज दैट इज गिवन हियर, दैट इज द आउट क्रॉसिंग प्रोसेस। तो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिलेटेड विद देम, आउटब्रीडिंग। व्हाट इज द आउटब्रीडिंग? Breeding of unrelated animals which may be between individual of the same breed out having no common ancestor of for 4 to 6 generation। ठीक है, इसमें भी ब्रीडिंग बिटवीन एनिमल के बीच में होता है, लेकिन इनके बीच में जो क्रॉसिंग होती है उसमें 4 to 6 जनरेशन के बीच का स्पीसीज नहीं होना चाहिए। दिस नोन एज द क्रॉस ब्रीडिंग। आर डिफरेंट स्पीसीज इंटर स्पेसिफिक आउटब्रीडिंग, तो दूसरे स्पीसीज के थ्रू कराए जाते हैं स्पीसीज में फर्टिलाइजेशन या क्रॉसिंग। सो द अदर टर्म दैट इज कॉल्ड द इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इंटर मतलब आउटसाइड से। तो इसमें दो टर्म है। अब फर्स्ट वन इज द आउट क्रॉसिंग। व्हाट इज द आउट क्रॉसिंग? मैटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड but having no common ancestor on either side of their pedigree up to 4 to 6 जनरेशन। ठीक है, वही है इसमें जो आउटब्रीडिंग की डिफिनेशन है। तो मैटिंग ऑफ एनिमल्स, उसमें दो एनिमल के बीच में क्रॉसिंग कराया जाता है विद इन द सेम ब्रीड होना चाहिए, बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर, लेकिन कॉमन एंसेस्टर के स्पीसीज नहीं होना चाहिए आइदर साइड ऑफ पेडिग्री। यदि एक ही पेडिग्री को मीन्स दैट इज अप टू 4 to 6 जनरेशन के बीच की। ओके, और सिमिलर प्रोसेस है क्रॉस ब्रीडिंग। क्या है इसमें? ब्रीडिंग बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स, ब्रीडिंग बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स। फॉर एग्जांपल हिसोडेल, डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्रॉस कराया जाता है, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। जैसे हिसोडेल है,
इज ए न्यू ब्रीड ऑफ शिप, एक न्यू वैरायटी है किसकी, शिप की, डेवलप्ड इन द पंजाब बाय क्रॉसिंग, यह पंजाब में डेवलप किया गया है बाय क्रॉसिंग बीकानेरी एप्स एंड मैरिनो रैम्स, दो स्पीसीज के बीच में क्रॉस करके बना है बीकानेरी एप्स एंड मैरिनो रैम्स के बीच में, ठीक है। उसका नाम क्या है, हिसॉर्डेल्स। दैट इज क्लियर। क्लियर हो गए सभी, ओके। थैंक्स for watching my video. If you not subscribe them, then you subscribe them, like and share it. Thank you.